Very good morning, children. Now, children, this is your social science class. Okay, now let's start the lesson. Landforms of the world. Children, earlier I had explained this lesson in your Zoom class. But if you have any confusion regarding this lesson, look at this video carefully, okay, and understand what I had taught you. Okay, children, now let's start. The land covering the earth's surface is not uniform. At some places it rises high, while at other places it is flat. The different features that make up the earth's surface are called landforms. There are four main landforms. These are mountains, plains, plateaus, and desert. This is the earth. The earth's surface is not a uniform. Okay, the earth's surface is not a uniform. Some place you have seen that like this, and some places are like this. Okay, so the different features that make up the earth surface. Okay, the different features like the images of like this and like this and like this, okay, and like this. These features that make up the earth's surface. Children, you have seen that the earth is not a similar all area. Okay, ये जो अर्थ है ये आपको सभी जगह एक जैसा नहीं मिलेगा. Somewhere you have seen that if you have visit in a hills area, you have seen that the hills area like this. Okay, and if you live in a plains area, flat land, you have seen that a flat land. Okay, children, so these features make up the earth surface, and these features make a surface are called landforms. Landforms are called landforms, and there are four main landforms. One is a mountain. Second is a plains. Third is a plateau. Fourth is a deserts. Okay, clear? Some landforms are formed by forces that act on the surface of the earth, such as water, wind, and ice. Some are formed by processes occurring deep inside the earth. Now first I will explain the mountains, valleys, and passes. Mountains and hills are rocky masses of land that rise higher than the surroundings. You have seen the mountains like this. This is a mountain. Okay, this is a mountain. The mountains is a higher. ये mountains क्या होते हैं? Higher, ऊंचे होते हैं. Then the surroundings, ये surrounding, this is the surface of the earth. ये अपने surrounding से क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं, higher होते हैं. The main differences between mountains and hills is that mountains have very steep slope and high peaks. ठीक है, mountains have a steep slope. Mountains में क्या होते हैं? Steep slope मतलब ज्यादा इसमें क्या होता है? ऊबड़ खाबड़ होता है. ठीक है, एंड हाई पीक्स, और ये बहुत ही ऊंचे होते हैं. Hills are smaller and lower. While the hills are smaller,
देन द माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन से हिल्स क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं माउंटेन से। माउंटेन्स यूजुअली occur in long rows called mountain range. When the mountains standing like this is called a mount range. Okay, what do we mean by mount range? We can also say define that a range of a group of mountain standing in a continuous line are called mountain range of mountain. Is that clear? Range of mountain, a group of mountains. Okay, a group of mountains are called range of mountain. Clear? The Himalaya in the north of India is the highest mountain. The Himalayas in the north. ठीक है, जो हिमालय है नॉर्थ में वो हाईएस्ट माउंटेन है। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन, माउंट एवरेस्ट क्या है बच्चों, हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। इज लोकेटेड इन द हिमालयस इन नेपाल, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, माउंट एवरेस्ट। Some mountains are formed when two large land masses push against each other. They are called fold mountain. ठीक है, जब दो चीजें क्या करती हैं, एक दूसरे को पुश करती हैं, तो वो क्या करते हैं, फोल्ड माउंटेन बनाते हैं। जैसे बच्चों ये क्या है, ये आप पेज देख रहे हैं। ठीक है, हमने इसे क्या कर दिया, इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया। इसने इसको क्या करा, पुश करा, तो ये क्या हो गया, फोल्ड हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फोल्ड माउंटेन। ठीक है, हिमालयस द रॉकीज इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द अल्पास इन यूरोप आर फोल्ड माउंटेन्स। एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन इज आर हिमालयस, द रॉकीज, द नॉर्थ अमेरिका एंड द अल्पास यूरोप आर फोल्ड माउंटेन। ओके, some mountains are formed when molten rock from deep inside the earth rises to the surface, forming a volcano. They are called volcanic mountain. ठीक है, जब क्या होता है, look at this images, ये क्या है बच्चों, वॉल्केनिक। जब नीचे से, अर्थ के नीचे से क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो वहां से क्या निकलता है, वॉल्केनो निकलता है। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, माउंटेन। ये है वॉल्केनिक mountain. Okay, Mount Fuji in Japan and Mount Vesuvius in Italy are volcanic mountains. एग्जाम्पल है volcanic mountain के Mount Fuji एंड माउंट कहाँ पर है, माउंट फ्यूजी जापान में, एंड माउंट वेसुवियस इन इटली, और माउंट वेसुवियस कहाँ पर है, इटली में। ठीक है, अनदर काइंड ऑफ माउंटेन्स आर ब्लॉक माउंटेन्स, और दूसरा क्या है आपका, ब्लॉक माउंटेन्स, फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग एंड स्लाइडिंग ऑफ लार्ज ब्लॉक्स ऑफ लैंड। एग्जाम्पल्स आर सीरिया, नेवाडा mountains in USA and the Black Forest mountain in Germany. ठीक है, ये क्या है आपके, ब्लॉक माउंटेन। The lowland between hills or mountains is called a valley. जो दो लैंड के बीच में, दो हिल्स के बीच में क्या होता है, इस तरीके से शेप बनती है, इसे हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। ठीक है, वैली। Valleys are normally formed by glaciers or rivers wearing away rocks on mountains. Valley are normally formed, कहाँ पर normally formed करते हैं, कहाँ पर ही होते हैं normally, glaciers or rivers wearing away rocks on mountains. A number of valleys have river
rivers flowing through them. Famous valleys in India are the Kashmir Valley and the Brahmaputra Valley. ठीक है, famous valley in India are the Kashmir Valley and the Brahmaputra Valley. Mountains have low narrow natural gap called passes. Mountains have low narrow, ठीक है, हल्का सा नैरो क्या होता है, हल्का सा उनमें क्या होता है, गैप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पासेस कहते हैं. पीपल क्रॉस द माउंटेन्स थ्रू दीज पासेस. और पीपल यहाँ से क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं. ठीक है. द काइबर पास इन द हिमालयस कनेक्ट्स अफगानिस्तान एंड Pakistan. Plateaus. Now next is plateaus. A large area of land that is higher than the surrounding and more or less flat at the top is known as a plateau. Plateau मैंने आपको बताया था बेटा कैसा होता है. ये आपका इस तरीके से सरफेस होगा like this and ये इस तरीके से होगा. ठीक है. जो इसकी इमेजेस होगी ये किस तरीके से होता है, थोड़ा सा ऊपर उठा होता है. और ये क्या होता है, जो इसकी शेप होती है टेबल की तरह होती है, तो इसे हम टेबल लैंड भी कहते हैं. वी ऑल्सो कॉल इट टेबल लैंड. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टेबल लैंड भी कहते हैं. अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर. ये थोड़ा सा क्या होता है, हायर होता है देन द सराउंडिंग्स. ठीक है, सराउंडिंग जो नीचे का सरफेस है उससे थोड़ा सा ऊपर उठा होता है और ऊपर से कैसा होता है, फ्लैट होता है. तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं. द डेक्कन प्लेट्यू इन साउथ इंडिया कवर्स ऑलमोस्ट द एंटायर पेनिनसुला. द डेक्कन प्लेट्यू इज द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज. ओके. द तिब्बतन प्लेट्यू इन द हिमालयाज इज द हाईएस्ट प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड. जो प्लेट्यू तिब्बतन प्लेट्यूज है वो क्या है, हिमालय का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है. हिमालय का नहीं, सॉरी, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है. इट इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. और इसे हम क्या है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं. वी ऑल्सो नोन एज द रूफ ऑफ द world. Okay. The Columbia and the Colorado plateaus are in the USA. The Columbia and the Colorado plateaus कहाँ पर हैं, USA में. Okay. Now next is plains. Plains are flat lands with gentle slope. Plains कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं. Rivers flowing from the mountains bring fertile soil to the plains. रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन. जब रिवर्स क्या है, माउंटेन से नीचे गिरती है तो वो क्या लाती है अपने साथ, ब्रिंग फर्टाइल सॉइल. ठीक है, वो अपने साथ क्या लाती है, फर्टाइल सॉइल लाती है. सो क्रॉप्स ग्रो वेल हियर. तो इसी कारण से दैट्स वाई क्रॉप्स ग्रो वेल हियर. ओके. प्लेन्स आर देयरफॉर द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड एरियाज इन द वर्ल्ड. Mostly people live in the plains area. Why? Because the plains area having a fertile land. Farming, it is suitable for the farming. That's why most of the people live in here. ठीक है, most of the people live in plains area. The northern plains of India and the prairies of the USA produce large amount of wheat and other grains. The northern plains and the prairies of the USA. ये क्या करते हैं, ये जो दो plains हैं ये क्या करते हैं, USA produce करते हैं large amount of wheat and other grains. Okay. Now next is deserts. Deserts are large, extremely dry areas of land. Deserts कैसे होते हैं बेटा, बहुत ड्राई होते हैं. ठीक है, और बहुत बड़े होते हैं, लेकिन बहुत कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं. Deserts having a little rainfall. ठीक है, there is a very little rainfall and very few plants grow in desert. Why? Because the less rainfall. Okay. Desert have extreme temperatures. In summers the days are very hot and the nights are cool. Deserts कैसे होते हैं बच्चों, समर्स में बहुत गर्म और क्या है, विंटर्स में कैसे होते हैं, बहुत ही कूल.
The important desert of the world are the Sahara Desert in North Africa. It is the biggest desert in the world. The Sahara Desert is the biggest desert in the world. It is situated in the North Africa. Now next is the Kalahari Desert. Kalahari Desert in Southern Africa. The Atacama Desert in South America. The Thar Desert in India. Coast, peninsula, bays and island. A place where land meets the sea is called where the land meets the sea. Look at this is a land and this is a sea. Okay, land meets the sea. Coast, where a place where the land meets the sea is called a coast. Some coasts are sandy and straight, others are rocky. A landmass which projects into the sea and is surrounded by water on three sides is called a peninsula. The पेनिनसुला क्या होता है बच्चों, बीच में होता है और उसके तीन तरफ से क्या होता है, पानी से वो घिरा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, ये पेनिनसुला है और यहाँ पर ये पानी से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, ये सराउंडिंग है कवर्ड विद वाटर। ठीक है, ये क्या है, वाटर है और ये क्या है, पेनिनसुला। ठीक है, The southern part of our country is a peninsula. The tip of a peninsula is called a cap. The southernmost tip of the India peninsula is called Cap Comorin. The Arabian Peninsula is the largest in the world. The Arabian Peninsula is the largest. Which is the largest peninsula in the world? Arabian Peninsula. Okay. A bay is a water body running into लैंड एंड सराउंडेड ऑन थ्री साइड बाय लैंड। बे क्या होता है, वाटर बॉडी है और ये क्या है, सराउंडेड ऑन थ्री साइड्स ऑफ लैंड। ठीक है, और ये तीन साइड से किससे घिरा होता है, लैंड से। द बे ऑफ बंगाल अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल। बे के एग्जाम्पल कौन से हैं, द बे ऑफ बंगाल और अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल। एन आइलैंड, आइलैंड इज अ लैंड मास सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय वाटर। आइलैंड क्या है बच्चों, एक लैंड मास है। ठीक है, जो सराउंडेड है, कवर्ड है किससे, वाटर से। ऑल साइड्स मतलब उसकी चारों तरफ क्या होगी, कवर्ड होगी किससे, वाटर से। श्रीलंका इज एन आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड विच आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। Andaman and Nicobar and Bay of Bengal, these are the two island. These are the part of India. ठीक है, ये क्या है, इंडिया के पार्ट हैं और ये क्या है, आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट क्या है, आइलैंड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रिवर्स। लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर आर कॉल्ड रिवर्स। जो नदी बहती है, ठीक है, लंबी जो झरने टाइप में नदी बहती है, उसे हम क्या कहते हैं, पानी का एक जो बहाव होता है, लंबा बहाव होता है, लॉन्ग स्ट्रीम्स, उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स कहते हैं। मैनी रिवर्स स्टार्ट इन द माउंटेन्स फ्रॉम मेल्टिंग स्नो इन ग्लेशियर। बहुत सी रिवर्स कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, माउंटेन से। व्हेन द स्नो मेल्ट्स इट फेल डाउन एंड मेक द रिवर। ठीक है, जब वो स्नो क्या होती है, मेल्ट होती है, तो वो नीचे बह करके आती है और वो क्या बनाती है, रिवर बनाती है। दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर एंड आर कॉल्ड पेरिनियल रिवर्स। दे हैव वाटर थ्रू आउट, उसमें पूरे साल क्या होता है, जो रिवर्स होती है, जो माउंटेन से क्या होती है, मेल्ट होकर के आती है स्नो। ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है, थ्रू आउट द रिवर होती है। मोस्ट रिवर्स इन नॉर्थ इंडिया आर पेरिनियल रिवर्स। उनको हम क्या कहते हैं, जो थ्रू आउट द रिवर क्या होती है, उसमें पानी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेरिनियल रिवर कहते हैं। इन साउथ इंडिया रिवर्स आर फॉर्म्ड बाय रेन वाटर और वाइल द साउथ इंडिया रिवर्स क्या होती है, आर मेक्ड बाय रेन वाटर। जो साउथ इंडिया की रिवर्स होती है वो किससे बनती है, रेन वाटर से। दे डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर।
इनमें क्या होता है, पूरे साल पानी नहीं होता है, मतलब इट मीन्स कि लिटिल होता है, लेस रेन होता है, ठीक है, सॉरी लेस वाटर होता है। सच रिवर्स आर कॉल्ड सीजनल रिवर्स, तो सो वी कॉल द सीजनल रिवर्स। ऐसे रिवर्स को हम क्या कहते हैं, सीजनल रिवर्स कहते हैं। रिवर्स अल्टीमेटली फ्लो इनटू द सी, ठीक है। Along the course of a river, several smaller rivers join the main river. They are called tributaries. ठीक है, बहुत सी rivers क्या होती हैं, ज्वाइन करती हैं मेन रिवर को, उसे हम क्या कहते हैं, tributaries of the main river. Before entering the sea, the river becomes very slow. It carries a lot of sediment. This keeps getting deposited on the way and causes the river to break up into channels or distributaries. These spread out like a triangle before falling into the sea. Such a region is called a delta. ठीक है, मैंने आपको बताया था क्या होता है, जब नदी क्या होती है, बह कर के आती है, ऊपर से जब आएगी वो फोर्स में आएगी, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका फोर्स स्लो होगा, ठीक है। वो अपने साथ क्या लेकर के आती है, सेडिमेंट्स लेकर के आती है, और वो जो सेडिमेंट्स होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और वो क्या करता है, वहां से क्या बनता है, डेल्टा बनता है। डेल्टा आपको क्या बताया था बच्चों, डेल्टा क्या है, स्टार्टेड कहाँ से होती है, डेल्टा इज स्टार्टेड एट द माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है, रिवर के माउथ से स्टार्ट होती है। द डेल्टा मेड बाय ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। द नील इन इजिप्ट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नील क्या है, सबसे बड़ी नदी है। सम अदर इम्पोर्टेंट रिवर्स आर द मिसिसिपी इन द यूएसए, द कॉन्गो इन अफ्रीका एंड द गंगा इन इंडिया। In history, we find that great civilizations have always developed along rivers, as the soil is richest here and the rivers provide water for drinking, domestic and agriculture purpose. ठीक है, जैसे कि आपको पता है पानी क्या हमारे लिए, water is very important for us. We have done many work with the water. ठीक है, हम लोग क्या है, बहुत से काम करते हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर पर्पस एंड हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, तो पानी क्या हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा फॉर्म्ड बाय द रिवर नील। ठीक है, ये डेल्टा, ये देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, ये अपने सेडिमेंट इन्होंने छोड़ दिया है, रिवर्स ने कहीं यहाँ पर क्या कर दिया है, कई रूट्स बना दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डेल्टा है। ओके, डन। So children, I hope you all are very understand the landforms of the river. There are 4 landforms: mountains, plains, plateaus and desert. Okay, is that clear? Okay, thank you बच्चों, have a nice day.